Assalamualaikum everyone. This is another online lecture for object-oriented programming. We're going to continue with the polymorphism. Nothing new except I did want to discuss another code. A few of the questions that I got during our last question answer session, I thought उसके मुताबिक हम थोड़ा सा कुछ एक नया code हम देख लेते हैं. ठीक है? So I hope this answers any of the questions you had, particularly about polymorphism and whether or not we can implement it on different levels of the inheritance hierarchy, right? So let's move on to a code that I have already written down and I will discuss it step by step कि हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. So this is the code right here. So what I am trying to do is create different types of sports persons. ठीक है? So इसके अंदर जो hierarchy है वो कुछ इस तरह की है. Let me draw it and show you. So the hierarchy essentially has a base class which is sports person. ठीक है, जिससे हम derive करेंगे एक और class which is footballer. यानी we are trying to define two different types of sports persons. So I have either a footballer and I have a cricketer. ठीक है, और साथ में मैंने ये किया है कि मैंने cricketer के आगे further two derived classes निकाली हैं which is bowler and then I also have a batsman. ठीक है, so if we draw the inheritance relationships, I have direct relationship between these two, and then my cricketer class has further two derived classes, which is bowler and batsman. And now we're going to see how we can implement and use virtual functions in a hierarchy like this. क्योंकि मुझे I did realize कि अब तक हमने जितने भी examples किए हैं वो हमेशा हमने एक single hierarchy वाले किए हैं. लेकिन in fact हम polymorphism को onto multiple different levels of hierarchy implement कर सकते हैं, and that is exactly what we're going to take a look at today. So let's go back to our main code. Right, so here we are. और इसके अंदर सबसे पहले what I have defined is my class sports person. This is going to be my base class for the entire hierarchy. Then इसके अंदर just to give it some sort of a flow and just to make it more realistic, मैंने कुछ इसके अंदर data members भी introduce करवाए हैं. So again, I have made the data members protected so that these are inherited. मेरी आगे classes के अंदर ये directly ये data members जो हैं वो inherit हो जाएं. If they were private, they would not have been inherited, right? That is what we discussed कि protected इसीलिए exist करता है. तो इसके अंदर मेरे I have a float type salary data member and I have an integer type games data member. और इसके अंदर अब मैंने दो virtual functions जो हैं वो define किए हैं. So I have defined one function which is virtual void return type है और उसका नाम मैंने रखा है initialize. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने इसको equal to 0 किया है. And if you recall from our previous lectures, equal to 0 जब भी मैं करूँगी किसी virtual function को, that makes it instead of just a regular virtual function, it makes it a pure virtual function. और pure virtual function के जिस भी class के अंदर pure virtual function exist करता है वो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और उसके डेटा ऑब्जेक्ट जो हैं आप इनिशियलाइज कभी भी नहीं करवा सकते. ठीक है, सो आई हैव एन इनिशियलाइज मैंने रखी है यहाँ पे फंक्शन विच इज वर्चुअल एंड आई हैव आल्सो अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड कैलकुलेट सैलरी बिकॉज मोस्टली आई न्यू कि मुझे अपने तमाम जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनको इनिशियलाइज करना ही होगा. So I thought why not use it as a virtual function, and similarly this was the function that I wanted to demonstrate which is the calculate salary function. तो इसको हम आगे चल के अभी देखते हैं. ठीक है, so next up मैंने ये किया है that I have a class footballer which is publicly inheriting from my sports person class. ठीक है, so this is the first level of the hierarchy. और इसके अंदर भी I have several protected data members. So I have a string which is लेट्स से जो क्लब का नेम है जिस भी क्लब से दिस फुटबॉलर ऑब्जेक्ट मेरा बिलोंग करेगा. देन आई हैव नंबर लेट्स से ओवर अ ईयर मैंने डिफाइन कर लिए हैं कि ईयरली परफॉर्मेंस मैं डिफाइन करना चाह रही हूँ. जो आपने अक्सर देखा होगा स्पोर्ट्स के अंदर हम स्टेटिस्टिक्स दे रहे होते हैं ऑफ अ सर्टेन प्लेयर्स. दिस इज सिंपली अ रफ sort of representation of that. What are the number of goals they've scored, what are the number of assists that they've provided, and what is the overall field time, let's say. Right, so next up मैंने इसका publicly एक constructor लिखा है and again this does nothing except it is only मैंने इसके अंदर default एक statement लिख दिया ताकि I know कि कब मेरा footballer वाला call हो रहा है constructor.
ठीक हो गया. So this is very basic up till right now. नेक्स्ट मैंने अपना जो वर्चुअल फंक्शन मैंने डिफाइन किया था अपनी बेस क्लास के अंदर कॉल्ड इनिशियलाइज, अब उसको मैंने यहाँ पे लिखा है. अब हमने ये बात हमेशा कही थी कि अगर मेरे पास मेरी बेस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, दैट मीन्स कि वो जीरो मैंने इसको किया हुआ है, और अब मैं इसको जब मैंने जैसे ही फुटबॉलर को पब्लिकली इनहेरिट करवाया तो ये वर्चुअल वॉइड फंक्शन इनफैक्ट इसका पार्ट बन गया, मेरी फुटबॉलर क्लास का पार्ट बन गया. और अब इसका मतलब ये है कि इस फुटबॉलर क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर मैं इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं करती और इनफैक्ट इसके अंदर कोई वॉइड इनिशियलाइज फंक्शन डिफाइन नहीं करती, तो यही वाला जो बेस क्लास का फंक्शन है वो इसका फंक्शन होगा, और अगर इसका फंक्शन इक्वल टू जीरो वाला कोई फंक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो मैं कभी भी फुटबॉलर टाइप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकूंगी. ठीक है. सो दैट मीन्स दैट इफ आई want to be able to create an object of the type footballer, I have to make sure that I provide definitions for both my pure virtual functions. So यही काम मैंने यहाँ पे किया है. I have chosen to initialize a footballer here. ठीक है. So this is initialize, और मैंने इस केस के अंदर सारी अपनी वैल्यूज हार्ड कोड करनी है. ऑब्वियसली अगर आपकी कोई असाइनमेंट होगी या if you're actually trying to replicate a real life scenario, you would want to have user input and you would want the user to populate all of these data variables, right? So यहाँ पे सबसे पहले I have set the data variables that I inherited from my base class which was sports person, and I'm using, और मैं इसको using my scope resolution operator लिख रही हूँ. आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट जनरली इट इज प्रिफर्ड कि जब भी आप किसी प्रीवियस हायरार्की जो की क्लास का अगर ऑब्जेक्ट या सॉरी डेटा मेंबर यूज कर रहे हो, इट इज जनरली अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सो दैट एवरीवन इज वेरी क्लियर कि ये डेटा मेंबर सैलरी का और डेटा मेंबर गेम्स का आया कहाँ से. ठीक है. सो टेक्निकली yes, because I have publicly inherited them, I could have simply written salary equals 5.7 or I could have simply written games equals 34, but I have chosen this format because this is the proper way to code जब आप किसी भी complex code की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक हो गया. Alright, so I have set first the data members that I have inherited from my base class. इनको मैंने hard code कर दिया. Then I have set the data members of this particular class which is my footballer class. और उसके अंदर मैंने इस initialize function के अंदर hard code कर दिए हैं कि club is Manchester, goals let's say is 23, assists 90 and field time again arbitrary values जो मैंने अपनी मर्जी से define कर दिए हैं यहाँ पे. ठीक हो गया. Similarly, this was a pure virtual function in my base class called initialize. I also had another pure virtual function which was called calculate salary. ठीक है. So again, if मैंने इसको publicly इस footballer class को publicly inherit करवाया from my sports person class, that means I also definitely have to provide a definition for calculate salary in footballer if I ever want to initialize an object of footballer type. So that is what I have done next. I have provided a calculate salary function. ठीक है. और calculate salary के अंदर again I have hard coded all of these values, and I have used a simple if condition to determine the salary depending upon what club the footballer belongs to. So if my player belonged to the club Manchester, I have simply set the sports person salary को मैंने initialize कर दिया है as 4.3 million. Let's say obviously this is up to you कि हम इसको किस measure के अंदर note down कर रहे हैं. ठीक है. So again, if my club is Tottenham, so I have set the salary as 2.3 million. ठीक हो गया. And then I've simply included a C out statement. ठीक है. And which is footballer salary for whatever club यहाँ पे आ जाएगा is, and whatever that sports person's salary I have determined is. ठीक हो गया. So that brings us to the end of my footballer class. साथ साथ if we go back to our structure of the hierarchy, now I know कि मुझे क्या करना है. Now I need to write another class which is called cricketer, which is directly derived from my sports person class, right? So let's do that next. I have a class cricketer which is publicly derived from the sports person class. I have a
इसके अंदर मैंने प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर रखा हुआ है विच इज लेट्स से ओनली द टीम, ठीक है। और मैंने टीम डिफाइन की है। अगेन मैंने इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर लिखा है विच इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच ओनली जस्ट हैज अ सी आउट स्टेटमेंट to indicate whenever the default constructor is called in the main structure of our program, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम ये किया है दैट you see here that I have not in fact defined any of the two pure virtual functions which I have inherited, right? यानी कि यहाँ जो मेरे पास दोनों प्योर वर्चुअल फंक्शंस थे यहाँ पे इनहेरिट होकर इस क्लास के अंदर आ गए हैं विच इज माई cricketer class, right? Because this is publicly inheriting from sports person. Now this cricketer class contains both those pure virtual functions, and because I have not overridden those pure virtual functions, what that means is कि अब मेरी जो cricketer class है वो भी एक abstract class बन गई है. So in fact, if in the running of your program you would now try and create a cricketer type object, आपको error आएगा and the compiler will tell you that it does not find any definition for the cricketer class and it is in fact an abstract class, ठीक है। I have done this intentionally because I never intended to ever create an object of type cricketer for the reason that I knew कि मैं अपनी hierarchy actual में जो मैं बनाना चाह रही हूँ cricketers उनकी दो further categories हैं which is bowler and batsman and these are the two type of sports persons that I will be creating. I will never actually just need to create a cricketer type uh, sports person, right? Which is why I have done this consciously and I have made this choice. पर एक मैंने काम यहाँ पे एक extra किया है which further reinforces this cricketer class as a abstract class is कि मैंने यहाँ पे एक virtual function define किया है which is called strike rate, ठीक है। again मैंने इसको equal to 0 कर दिया है, so that makes this function a pure virtual function and further makes this class which is my cricketer class an abstract class, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि अब ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे एक फर्दर प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐड कर लिया है इट मीन्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे आगे इसकी डेफिनेशन स्ट्राइक रेट की मिल जाएगी, ठीक है। सो अगेन दिस इज सिंपली टू रीइंफोर्स कि ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी हायरार्कीज के अंदर सिर्फ एक ही पोजीशन के अंदर अपने प्योर वर्चुअल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स जिनके ऊपर अब अपनी हायरार्की के अंदर असाइन या सॉरी डिक्लेयर कर सकते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस। यूज कैसे करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। So I have my third level of the hierarchy here which is batsman, ठीक है। और batsman is publicly inherited from my cricketer class, ठीक है। abstract class है उसका object तो मैं नहीं बना सकती लेकिन मैं उसे derive जरूर करवा सकती हूँ, right? So then again इसके अंदर मैंने several अपने protected data members define किए हैं जिसके अंदर I have innings, I have not outs, I have aggregate runs and higher score. And in order to calculate my strike rate, I also have the number of balls that were faced by this batsman. Sorry, ठीक हो गया। So अब again इसके अंदर भी मैंने अपना एक initialize function रखा है, ठीक है, जिसके अंदर now I am initializing everything that this batsman contains and this batsman since ये थर्ड लेवल हायरार्की के अंदर सेकंड लेवल हायरार्की के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर वो भी तमाम डेटा मेंबर्स हैं जो कि मेरे थे उसके अंदर क्रिकेटर लेवल के अंदर थे और वो भी हैं जो मेरे स्पोर्ट्स पर्सन लेवल के अंदर थे, राइट। अब अगेन मैंने ये इनिशियलाइज फंक्शन अपना क्रिकेटर क्लास के अंदर नहीं लिखा था बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे इसकी अगली हायरार्की के ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट करने हैं। So in fact, I did not need to have an initialize function here. और initialization जो है मैं अपनी last या वो उस derived class के अंदर कर रही हूँ जहाँ पे मुझे अपना object create करना है, ठीक है। So this is my batsman class और batsman के अंदर मैं अपना initialize function जो है वो define कर रही हूँ, ठीक हो गया। So then I have the data member from sports person which is salary, मैंने वो define कर दिया है। Then I have the sports person के अंदर जो games था वो define हो गया। Then I have cricketer के अंदर मैंने एक वेरिएबल रखा था team. Again I am hard coding these values because I don't really care अभी इस वक्त कि ये hard code हुई है
we are simply going to take a look at कि अभी हमने करना क्या. Again, if it's an assignment or something, you would obviously be taking user input at this stage, right? और मैंने कुछ अपने यहाँ पे डेटा मेंबर्स तमाम इनको जो है किसी arbitrary value के ऊपर initialize करवा दिया. I'm not even sure if all these values make sense, but I hope they do, right? Alright, so then I have initialize हो गया मेरा player, and then I also have a definition for the strike rate function जो in fact मैंने define किया था अपनी cricketer class के अंदर. So this was my cricketer class. यहाँ पे मैंने एक virtual void pure virtual function जो है वो define किया था, which is strike rate, which now I am डिफाइन नहीं किया था, सॉरी डिक्लेयर किया था. यहाँ पे आई एम डिफाइनिंग इट. ठीक है, सो स्ट्राइक रेट है. अभी मैंने बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्योंकि मैंने डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करना था और मैंने एक बॉलर का स्ट्राइक रेट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करना था. हेंस द रीजन दैट आई नीडेड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, सो स्ट्राइक रेट फंक्शन वही है, लेकिन अगर ये एक बैट्समैन है तो इसका मैंने जो स्ट्राइक रेट है वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया है, जिसका फॉर्मूला लेट्स से मैंने ये यूज किया है कि व्हाटएवर are the number of balls that he played divided by the aggregate runs that this player scored, and इसकी मैंने एक percentage निकाल ली है. ठीक है, so that is the strike rate of my batsman. Similarly, क्योंकि again इसको मुझे calculate salary भी मुझे यहाँ पे दोबारा से define करना है. क्यों? क्योंकि इसने भी वही pure virtual function inherit किया हुआ है from my base class, right? So I have a void calculate salary. और अब सैलरी मैंने एक बॉलर की सिंपली अगेन हार्ड कोड कर दी है और इफ स्टेटमेंट्स के ऊपर कर दिया. अगर पाकिस्तान का प्लेयर है सो उसकी सैलरी मैंने लेट्स से 2.4 कर दी. इफ इट्स अ प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड लेट्स से उनकी सैलरी मैंने 5.4 कर दी. एंड आई सिंपली हैव अ सी आउट स्टेटमेंट फॉर द व्हाटएवर द टीम दिस बैट्समैन प्लेज फॉर एंड व्हाट देयर सैलरी इज, राइट? सो ये जो सारे मैंने काम किए हैं, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय क्लास. आई आल्सो हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, अगेन सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो बिल्ड किया है, राइट? सो लास्ट केस मेरे पास कौन सा है? लास्ट इज माय क्लास ऑफ बॉलर. ठीक है, देन बॉलर इज अगेन पब्लिकली इनहेरिटेड फ्रॉम माय क्रिकेटर क्लास एंड देन इन प्रोटेक्टेड फॉर्म में मैंने इसके भी कुछ. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू माय बैट्समैन क्लास, राइट? इसके अंदर बस ये है कि इसके अंदर डेटा मेंबर्स मेरे फर्क हैं, नंबर ऑफ ओवर्स कितने बॉल किए हैं, runs कितने concede किए हैं, wickets कितनी ली हैं, and then I also have a string variable which is let's say saying कि career best क्या है इस bowler का. ठीक है, तो मैंने इसको भी initialize करने के लिए again I have used some specific hard coded values in order to initialize all the data variables that my bowler object contains. और similarly career best भी मैंने दे दिया as simply a string statement. ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या क्या करना है? एक तो इसने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन इनहेरिट किया था which was void initialize. Similarly I have inherited a function which is void strike rate. और थर्ड केस में क्या है? I have also inherited void which is calculate salary. ठीक है, राइट. सो अगर मैंने ये किया हुआ है तो देन आई हैव स्ट्राइक रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया. स्ट्राइक रेट क्योंकि मुझे इसका कैलकुलेट एज अ बॉलर डिफरेंट था और बॉलर के लिए स्ट्राइक रेट मैंने क्या किया है? नंबर ऑफ बॉल्स नंबर ऑफ ओवर्स जितने भी बॉल किए हैं इंटू 6 कर दिया और डिवाइड कर दिया बाय द नंबर ऑफ विकेट्स एंड आई हैव कैलकुलेटेड अ परसेंटेज ऑफ दैट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस्ड कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कब यूज कर रहे होते हैं? जब हमारे पास फंक्शन का नाम सेम होता है जो इस केस के अंदर स्ट्राइक रेट है, लेकिन a strike rate for one derived class holds a different meaning than the strike rate for another derived class, which in this scenario is a strike rate for a bowler is different than a strike rate for a batsman, right? So that brings us to the end of our classes, right? अब इसके लिए मैंने calculate salary भी कर दी है and that brings us to the end of our classes. So let's take a look at what we can do with these pure virtual functions and their definitions, right? So अब मैंने यह काम किया है कि सबसे पहले just to show how we can use dynamic memory and these kind of virtual functions together, we have let's say मैंने एक choice ली है, user से input ली है. So I wanted the user to indicate how many players they want to create during the running of this program. So I have taken that in as my choice. And then I have initialized a sports person type base pointer जिसको मैंने नाम जो है वो player दिया है और players की मैंने एक pointer array बनाई है और कितनी size उसका कितना है जितना भी choice user ने
इंडिकेट की है, ठीक है। देन आई हैव अ स्ट्रिंग के लिए मैंने एक टाइप यूज की है एंड विल सी कि मैंने किस तरह यूज किया, राइट। सो आई देन हैव ए फॉर लूप और मैंने सी आउट की स्टेटमेंट के प्लेयर टाइप क्या है, यानी कि आई एम आस्किंग द यूजर व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। सो प्लेयर टाइप के अंदर इसके अंदर पॉसिबली इसके पास दो ही ऑप्शंस हैं विच आई शुड हैव रिटन हियर इन द सी आउट स्टेटमेंट, बट एनीवे यहाँ पे मैंने पूछना ये है कि डू दे वांट टू क्रिएट अ फुटबॉलर और डू दे वांट टू क्रिएट अ क्रिकेटर, ठीक है। तो मैंने ये यूजर इनपुट ले लिया यूजिंग माय गेट लाइन और मैंने अगेन स्ट्रिंग इनपुट्स लिए हैं, हेंस मैंने यहाँ पे इग्नोर और क्लियर की स्टेटमेंट्स यूज कर ली हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। So if the user entered the type cricketer के आगे I am giving them two further options and I have said do you want to create a batsman or a bowler, and again I have taken the input and और अगर bowler कहा है तो मैंने player array जो थी मेरी pointed array उसकी उस index के ऊपर इसको एक new bowler type object जो है वो create कर दिया। सिमिलरली अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने दूसरी टाइप भी दे दी है, अगर टाइप जो है वो बैट्समैन थी तो मैंने उस इंडेक्स के ऊपर इसको एक बैट्समैन टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया, राइट। और सिमिलरली आई हैव रिटन दीज सी आउट स्टेटमेंट सो दैट आई नो कि मेरा ये दिस इज वर्किंग करेक्टली, राइट। और अगर टाइप जो है वो क्रिकेटर नहीं थी यानी कि वो फुटबॉलर थी तो आई हैव सिंपली एट दैट इंडेक्स असाइंड अ न्यू फुटबॉलर टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब मैंने इन सबको असाइन कर दिया है, ठीक है, यानी कि असाइन करना मतलब इस इंडेक्स पे लेट्स से ये इंडेक्स नंबर 0 है तो प्लेयर 0 को इनमें से कोई ना कोई एक अब तक असाइन हो गया होगा। सो आइदर इट हैज अ बॉलर और अ बैट्समैन और इट हैज ए फुटबॉलर ऑब्जेक्ट असाइन टू इट। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए यानी कि प्लेयर 0 के लिए लेट्स से मैंने इनिशियलाइज फंक्शन भी कॉल कर लिया और फिर मैंने उसका कैलकुलेट सैलरी फंक्शन कॉल किया, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई वांटेड टू एम्फसाइज कि यहाँ पे मैं क्या फंक्शन कॉल कर सकती हूँ। यहाँ पे बिकॉज प्लेयर्स जो है वो मेरा एक स्पोर्ट्स पर्सन टाइप पॉइंटर है, ठीक है। इट कैन ओनली कॉल या एक्सेस दोज वर्चुअल फंक्शंस जो बेस के अंदर डिफाइन थे, ठीक है। डिफाइन से मकसद ये कि बेस को पता थे कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। So as a base class, it only knows about initialize and it only knows about calculate salary. So यानी कि only those virtual functions can be accessed by a sports person type pointer which exist in the sports person class, जो कि सिर्फ क्या है initialize हैं या फिर calculate salary हैं, ठीक है। So those are the only two functions that in fact I can access for my players type array, ठीक है। इसके अंदर मैं strike rate बिल्कुल भी access नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल फंक्शन अगर मैं इसको एक बेस क्लास यानी स्पोर्ट्स पर्सन टाइप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ, that means के that function is one which applies to every single thing which occurs under that sports person class in the hierarchy, ठीक है। और strike rate ऐसी चीज नहीं है which is true। अब क्योंकि फुटबॉलर का strike rate क्या है, that is not something which holds any meaning or that is let's say required. I don't know if that holds any meaning, but let's say that is not something that I have defined that I need, ठीक है। so that means के strike rate was something which is particular to the cricketer class, it is not something which is particular to my sports person class, right। so इसके अंदर मैं सिर्फ कौन से functions कॉल कर सकती हूँ, वही virtual functions जो मैंने या तो base class में डिक्लेयर किए हैं या फिर जो मैंने अपनी base class में डिक्लेयर करने के बाद अपनी derived classes के अंदर रीडिफाइन किए हैं, राइट। अब ये जरूर हो सकता था कि मैंने कैलकुलेट सैलरी जो है वो, चलिए लेट्स इसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं, बट फॉर नाउ अभी हम सिर्फ इस बात पे रहते हैं कि हम इसकी कैलकुलेट सैलरी फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं और इनिशियलाइज का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम उस तो बताने का मकसद ये है एक ही प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शंस एंड डिफरेंट लेवल ऑफ इस तरीके की एरेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जो आपने प्लेयर्स यहाँ पे बनाए हैं उनकी आप स्ट्राइक रेट्स कैलकुलेट इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इन द सेम प्रोग्राम यू कुड हैव कि लेट्स से अगर आप एक क्रिकेटर टाइप की का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और उसकी क्रिकेटर्स की एक एरे बना लेते हैं, और उस एरे में आप लेट्स से इंडेक्स 0 के ऊपर एक बॉलर जो है वो क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। अब आप एक क्रिकेटर्स के अंदर जो है वो स्ट्राइक रेट का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक क्रिकेटर टाइप
और जो है वो पॉइंटर लिया है और उसको बेशक आपने एक बॉलर टाइप ऑब्जेक्ट असाइन किया है, बट बिकॉज क्रिकेटर नोज ऑफ द फंक्शन कॉल्ड स्ट्राइक रेट, इट इज एबल टू एक्सेस इट. ठीक है, सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग इट, कि हम किसी तरह से सिमिलरली मैंने क्रिकेटर 1 को बैट्समैन दिया और बैट्समैन का स्ट्राइक रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया. तो बेसिकली आपको ये बात ख्याल रखनी होती है कि जब हम वर्चुअल फंक्शंस मल्टी लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, इज इट समथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर एवरी सिंगल क्लास इन योर फंक्शन, तो फिर तो आप उसको बेस क्लास में वर्चुअल बना लें. लेकिन इफ इट्स समथिंग दैट इज नॉट in fact true for every single class, तो हम उसको अगली लेवल पे ले जाते हैं, but then we have to be very careful what it is that we can control from a base class pointer. ठीक है, so इस अप्रोच के अंदर मैंने सिर्फ ये काम इसलिए किया है ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि मैं क्रिकेटर पॉइंटर के थ्रू इस तरह एक्सेस कर सकती थी. लेकिन इनफैक्ट जब तक बात सिर्फ प्लेयर्स क्रिएट करने की थी, तो वो जो स्ट्राइक रेट फंक्शन है वो मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मैं इसको इस लूप में इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकती, बिकॉज this is a base class pointer which does not know of the strike rate function. ठीक है, तो इस कोड को आप लोग थोड़ा गौर से दोबारा से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा. एक ही बात which I wanted to discuss was कि अगर मैंने अभी तो मैंने इन फंक्शंस को प्योर वर्चुअल किया हुआ है, ठीक है, और ये भी हो सकता था कि मैं कैलकुलेट सैलरी को लेट से अपनी क्रिकेटर क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर देती, ठीक है, और आगे उन दोनों के लिए जो है उसको डिफाइन ना करती, देन इट वुड हैव बीन, क्योंकि अगर लेट्स से मेरे पास कैलकुलेट सैलरी फॉर अ बैट्समैन एंड अ बॉलर सेम होती, तो देन आई वुड हैव इन फैक्ट डन कि मैंने उसकी डेफिनेशन इस क्रिकेटर लेवल के ऊपर दे दी होती. तो जब भी बैट्समैन का कैलकुलेट सैलरी कॉल होता है, तो कौन सा वाला कॉल हो जाता है जो क्रिकेटर के अंदर आपने डिफाइन किया हुआ होता. सिमिलरली अगर बॉलर का कैलकुलेट सैलरी फंक्शन कॉल करने की जरूरत होती, तो कौन सा कॉल हो जाता है, वही जो आपने क्रिकेटर के अंदर डिफाइन किया था. अभी तो मैंने क्योंकि सैलरीज फर्क रखी हैं ऑफ अ बैट्समैन एंड अ बॉलर, इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेट सैलरी फंक्शन को मैं लास्ट पॉसिबल हायरार्की लेवल के ऊपर ले गई हूँ. बट अगर लेट्स से मेरे पास दोनों की कैलकुलेशन ऑफ सैलरी वाज अ सेम type of function, so then I could have used, or I could have in fact defined that function on this level and it would have worked just as correctly. ठीक हो गया. So I do hope you all will try and take a look at it yourselves and try to reproduce this code. If you have any questions, feel free to ask me in our next session, question answer session, which will inshallah be on Thursday, right? Okay, ji. I think that is it for today. Thank you everyone and Allah Hafiz.